So in last lecture, we were watching about the examples based on irregularity of the yarn or irregularity of the textile material such as sliver, roving and yarn. So again, today we are going to discuss or we are going to solve the examples based on the irregularity only. Write down this example. A 135 text sliver made up of average diameter made up of fibers whose average diameter is 22 micrometer has a CVA of 8.5%. The same sliver is spun into 19 text yarn with a CVA of 22%. Assuming the fiber density to be 1.3 gram per cubic centimeter and the constant in the limit irregularity formula will be 112. Calculate the irregularity index for the sliver and for the yarn. So you first write down this example. I will wait for a minute. Okay. I hope you have written the example. So what is the given data? When we read the example carefully, we'll get the given data. What they have given. A sliver is there, a 135 text sliver. So sliver linear density they have given, that is 135 text, and it is made up of fibers having average diameter 22 micrometer. So fiber dia, they have given fiber dia 22 micrometer, has a CV of 8.5. CV of 8.5 of means what? Here the actual CV of sliver they have given, right? Actual CV of sliver. So actual CV of sliver is 8.5%. Now they have used the same sliver to spun into 19 text yarn. Means yarn text they have given, that is 19, and with a CV of 22%. It means what? Actual CV of yarn also they have given. Actual CV of yarn is 22. Assuming the fiber density be 1.3 gram per cubic centimeter. Also they have given the fiber density. .3 gram per cubic centimeter, and the constant in the limit irregularity formula be 112. So limit irregularity constant is 112. 112. So these many things they have given, and they asked to calculate irregularity index for sliver and irregularity index for yarn. So these things you have to calculate.
So first of all, we'll think about the irregularity index of sliver. क्योंकि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सेम स्लाइवर यूज करके हम यान बनाने वाले हैं. तो पहले हम irregularity index of sliver निकालना पड़ेगा पहले हमको. First of all, we have to calculate the irregularity index of sliver. Then we can think of yarn. तो सबसे पहले हम irregularity index of sliver का फॉर्मूला लिख लेते हैं. सबको पता है irregularity index का फॉर्मूला क्या है. I of sliver is equal to actual irregularity of sliver divided by limit irregularity of sliver. Actual irregularity of sliver divided by limit irregularity of sliver. अब जब हम इस फॉर्मूला को देखते हैं, स्लाइवर का irregularity हमको निकालना है. जब हम इस फॉर्मूला को देखेंगे तो अपने पास क्या दिया है और क्या नहीं दिया है वो सोचना पड़ेगा. क्या क्या क्वांटिटी दिया है. irregularity index of sliver निकालना है. ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है कि ये अननोन है. दिस इज अननोन. When we shift to the other side of the equality sign, what we find, there is actual irregularity, right? Is they have given actual irregularity of sliver? Yes, they have given the actual irregularity of sliver, that is 8.5%. They have given actual irregularity as 8.5%. Now we'll think about limit irregularity. Is they given the limit irregularity? No. If you see the given data, nowhere you will find the limit irregularity. Now it is our duty to calculate the limit irregularity. So how to calculate limit irregularity? Again we know the formula. Limit irregularity is equal to, which formula I should use here? Which formula I should use here? Tell me. For the limit irregularity of sliver, कौन सा फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे? इन्होंने क्या दिया है देखो यहाँ पे, लिमिट इरेगुलरिटी फॉर्मूला टू बी कांस्टेंट. जो भी हम यूज करने वाले लिमिट इरेगुलरिटी में 112 यूज करने वाले, इसका मतलब क्या हो गया, 112 बाय √n. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि उन्होंने बताया है, कांस्टेंट सीधा सीधा बता दिया उन्होंने, 112 है. I will use this formula for calculating the limit irregularity of sliver. अब जब मैं इस फॉर्मूला को देखता हूँ तो अगेन मुझे प्रॉब्लम आ रहा है कि n निकालना है, नंबर ऑफ फाइबर्स निकालना है. तो मुझे पता है नंबर ऑफ फाइबर्स का फॉर्मूला क्या है. अब ये जो कि ये स्लाइवर है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, स्लाइवर लीनियर डेंसिटी डिवाइडेड बाय फाइबर लीनियर डेंसिटी. अब जब हम इस फॉर्मूला को देखते हैं तो फिर से यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है देखो, स्लाइवर लीनियर डेंसिटी दे हैव गिवन 135 टेक्स, but they have not given fiber linear density. तो अब यहाँ पे और क्या करना पड़ेगा अपने को, अब यहाँ पे फिर से अपने को फाइबर लीनियर डेंसिटी निकालना पड़ेगा. अब फाइबर लीनियर डेंसिटी कैसे निकालते हैं बताओ मुझे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम. फाइबर लीनियर डेंसिटी अगर मुझे निकालना है, क्या फॉर्मूला यूज करूंगा मैं. देखो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है तो कैसे करना है. एम आई ऑडिबल नो? यस सर. ओके. तो देखो हम थोड़ा सा
लॉजिकली थिंक करते हैं। फाइबर लीनियर डेंसिटी निकालना है तो हमें टेक्स्ट में निकालेंगे ऑब्वियसली, या मिली टेक्स्ट में निकालेंगे, है ना। इसका मतलब ही क्या है, जब भी टेक्स्ट या मिली टेक्स्ट का जिक्र आता है तो हम मास निकालते हैं, मास इन ग्राम्स ऑफ 1000 मीटर्स ऑफ मटेरियल दैट इज टेक्स्ट, मास इन ग्राम्स ऑफ 1000 मीटर्स ऑफ मटेरियल दैट इज टेक्स्ट। अब यहाँ पे हम मास इन मिलीग्राम निकालेंगे क्योंकि वो सिंपल जाता है। मास इन मिलीग्राम हम यहाँ पे निकालेंगे क्योंकि उस टाइप के एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी देखे यूनिट नंबर 1 में। अगर आप यूनिट नंबर 1 की तरह प्रूव करते हो तो आपको समझ में आएगा कि कैसे निकाला है हमने, ठीक है ना। डेंसिटी इज व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? 1.3 gram per cc. Density is mass per unit volume. Density is mass per unit volume, right? If you know this formula, we have already studied it in unit number 1, right? Here you can get this mass. I want linear density. I want linear density, right? So it is my duty to calculate the mass per 1000 meters of material, right? So here I will try to find out this m. I will try to find out this m. Now m is equal to what? Mass is equal to what? Volume into density, volume into density, density of fiber. अब जब हम इस फॉर्मूला को देखेंगे तो यहाँ पे डेंसिटी दिया है क्या उन्होंने, फाइबर का दिया है, कितना दिया है, 1.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और वॉल्यूम दिया है क्या, नहीं दिया है, वॉल्यूम दिया है क्या, नहीं दिया। अब इस मास को हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मास हम मिलीग्राम में निकालेंगे, मास इन मिलीग्राम। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या? यस सर, पाई आर स्क्वायर फाइबर डायमीटर दिया है, फाइबर डायमीटर दिया है उन्होंने, फाइबर डायमीटर दिया है, कहाँ पे है ये। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये अपना फाइबर है, मान के चलो एक फाइबर है अपना, ठीक है ना। इट हैज अ पर्टिकुलर लेंथ, it has a particular length, right, and it has a diameter. It has a diameter. And if you see this structure is cylindrical structure. This structure is cylindrical structure. So we can able to calculate the volume of cylinder, right? So that we can able to get the volume of this fiber, right? Single fiber. So what is the volume of cylinder here? What is the volume of cylinder here? पाई आर स्क्वायर है सर, Pi r square d/2 हो जाएगा r। नहीं नहीं, वॉल्यूम क्या है, pi r square l, pi r square l. Here we are calculating volume in centimeter cube, right? So volume of cylinder is pi r square l. Now here pi is constant, r means what, d by 2, r is the radius, we are having the diameter here, so 22 by 2 is the radius, right? 22 by 2 is the radius. But here if we see the unit of diameter is micrometer, I want it in centimeter cube volume, so I am to convert this value into the centimeter.
as it is r square, right? So that will take later on. You first of all tell me conversion between micrometer and centimeter. 1 micrometer is how much centimeter? 1 micrometer is how much centimeter? ध्यान दो, मैं आपको बता देता हूँ. 10⁻⁻⁴. कन्वर्जन सब आप मगआउट करके रखो, नहीं तो प्रॉब्लम जाएगा. अब ये कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में, ये कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में. अब ये पाई आर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हो गया. पाई आर स्क्वायर है ना ये, तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया ऊपर. ओके. यल, अब यल कितना है यहाँ पे, लेंथ कितना है? ऑब्वियसली लेंथ कितना रहेगा? हम टेक्स्ट सिस्टम है तो लेंथ यहाँ पे रहेगा 1000 मीटर. 1000 मीटर मतलब क्या है? 10⁻³ इसको सेंटीमीटर में करेंगे इंटू 10⁻², मतलब ये हो जाएगा 10⁻5. कुछ क्या नहीं यहाँ पे, कुछ ऐसा खाली ये मीटर है उसको सेंटीमीटर में किया है. सो इट इज 10⁻5. 10⁻5. If you do this, you will get volume. If you do this, you will get volume. तो कितना है वॉल्यूम यहाँ पे? इसका कैलकुलेशन करो, आपको आ जाएगा वॉल्यूम. सिंपल है, सिंपल. थोड़ा सा मैं इसको और सिंपल करता हूँ. पाई 22 बाय, ये क्या हो जाएगा? 22 बाय, यहाँ पे करता हूँ 0.38. 0.38 आता है क्या? यस सर. एक मिनट, पूरा कैलकुलेशन किया ना उसका? ये पूरा किया ना? यस सर. जीरो 0.38 सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम आ गया. अब मास निकाल सकते हैं हम यहाँ पे. मास इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम आ गया 0.38. डेंसिटी कितना दिया है? 1.3 ग्राम है, वो मिलीग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 1.3 इंटू 10⁻3. कितना आता है मास? 494 पॉइंट समथिंग. 494 और Only 49. एग्जैक्ट 494 आता है मिलीग्राम. Yes. So your mass is 494 milligram. Your mass is 494 milligram. इसका मतलब क्या हो गया? आपका फाइबर डेंसिटी क्या हो गया? फाइबर लीनियर डेंसिटी, सॉरी नॉट डेंसिटी, फाइबर लीनियर डेंसिटी क्या हो गया? 494 मिलीटेक्स. 494 मिलीटेक्स, ये आपका फाइबर लीनियर डेंसिटी हो गया. अब आप नंबर ऑफ फाइबर्स निकाल सकते हो, क्योंकि फाइबर लीनियर डेंसिटी अभी आपने निकाला. सो n इज इक्वल टू स्लाइवर लीनियर डेंसिटी. स्लाइवर कितना है? 135 टेक्स है, उसको मिलटेक्स में कन्वर्ट करो. 135 into 1000 डिवाइडेड बाय फाइबर लीनियर डेंसिटी इज 494. कितना था n? 273.2. कितना था? 273.2. 3.2 मतलब 273 लिख सकते हैं हम. 273. सो n इज 273. अब आपके पास n आ गया, मतलब अब आप लिमिट का निकाल सकते हो. लिमिट इरेगुलरिटी हम निकालेंगे. लिमिट इरेगुलरिटी फिर लिमिट CV
You can write irregularity 112 divided by root n, that is 273. कितना आता है? 6.77. 6.77%. ये आ गया लिमिट. अब आपके पास लिमिट आ गया, तो स्लाइवर का इरेगुलरिटी निकाल सकते हैं आप. इंडेक्स, इरेगुलरिटी इंडेक्स ऑफ स्लाइवर इज इक्वल टू एक्चुअल बाय लिमिट. एक्चुअल कितना दिया है? 8.5. एक्चुअल दिया 8.5 डिवाइड बाय लिमिट कितना है? 6.77. कितना आ गया? 1.25. 1.25. So this is the answer. This is the answer for irregularity index of sliver. Irregularity index of sliver. Now you have to calculate the irregularity index for yarn. You have to calculate the irregularity index for yarn. कैसे निकाल सकते हैं यान को? यान को निकालना है तो फिर से आपको यन निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ फाइबर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट इरेगुलरिटी का फॉर्मूला क्या है? 112 बाय स्क्वायर रूट ऑफ n. ठीक है ना? क्योंकि अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो सेम वही हिस्ट्री रिपीट हो गई है स्लाइवर की. यान का सीवी दिया है, यान का एक्चुअल सीवी दिया है, बट लिमिट सीवी नहीं दिया है. अगर लिमिट सीवी नहीं दिया है तो लिमिट सीवी निकालना पड़ेगा ना यान का भी. तो लिमिट सीवी यान का कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला यूज करेंगे 112 बाय रूट n. तो n पता नहीं, फिर n को निकालना पड़ेगा. तो हम n को यहाँ पे निकालेंगे. चलो यही निकालता हूँ मैं. n को निकालना पड़ेगा. तो n को कैसे निकाल सकते हैं? यान लीनियर डेंसिटी बाय फाइबर लीनियर डेंसिटी. तो यान लीनियर डेंसिटी कितना है यहाँ पे? 19 टेक्स है. सो 19 इंटू 1000 मिल टेक्स में करना है. डिवाइड बाय फाइबर लीनियर डेंसिटी कितना आया था अपना? 494. फाइबर तो चेंज हुआ नहीं ना, उसी स्लाइवर से हम यान बना रहे हैं, तो फाइबर कहाँ चेंज हुआ? तो वही रहेगा 494. तो इसका आंसर कितना आता है? यन कितना आता है? यन कितना आता है? 38.46. 46 मतलब 5, 38.5 मतलब 39. So your n is 39. Here your n is 39. आपके पास n आ गया. n आ गया, इसका मतलब आप लिमिट निकाल सकते हो. So limit cv is equal to 112 by root n, that is root 39. So what will be the answer? 18. 18%. Okay. So limit cv is 18%. तो हम यान का निकाल सकते हैं अब इरेगुलरिटी. यान इरेगुलरिटी इंडेक्स इज इक्वल टू एक्चुअल कितना है? 22 है. यान का एक्चुअल कितना है? 22 है. डिवाइड बाय लिमिट कितना आ गया? 18. So when you do this, you will get the answer. How much it is? 1.22. 1.22. That is your answer. 1.22. तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है. यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला बराबर लिखते जाओगे तो आपको कुछ दिक्कत नहीं जाएगा. ये फॉर्मूला अपने को चाहिए था स्लाइवर का, इरेगुलरिटी इंडेक्स का, एक्चुअल बाय लिमिट. लिमिट पता नहीं है तो लिमिट इरेगुलरिटी का फॉर्मूला है 112 बाय रूट n, क्योंकि 112 इन्होंने यहाँ पे दिया है. अगर ये नहीं देते, सपोज अगर कॉटन मटेरियल ऐसे बोलते हैं तो फॉर्मूला बदल जाता. वूल है बोलते हैं तो फॉर्मूला बदल जाता. यहाँ पे उन्होंने दिया है तो दिक्कत नहीं है. सो 112 बाय रूट n, बट n भी पता नहीं है तो n कैसे निकालते हैं ये भी हमने देखा है. स्लाइवर लीनियर डेंसिटी. अब यहाँ पे मटेरियल के ऊपर डिपेंड रहेगा आपका, स्लाइवर है, रोविंग है, यान है. अगर रोविंग है तो रोविंग लीनियर डेंसिटी बाय फाइबर लीनियर डेंसिटी हो जाएगा. यान है तो यान लीनियर डेंसिटी बाय फाइबर लीनियर डेंसिटी हो जाएगा. स्लाइवर है तो स्लाइवर लीनियर डेंसिटी और बाय फाइबर लीनियर डेंसिटी हो गया. तो ये निकालना है. फाइबर लीनियर डेंसिटी पता नहीं है अपने को यहाँ पे, तो फाइबर लीनियर डेंसिटी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे डायमीटर दिया है और डेंसिटी भी दिया है फाइबर का. और इस तरीके का एग्जाम्पल हमने यूनिट नंबर 1 में देखे हैं. यूनिट नंबर 1 में इस तरीके के एग्जाम्पल हमने देखे हैं. तो फाइबर लीनियर डेंसिटी हम इजीली निकाल सकते हैं उसका यूज करके, है ना. 2 फॉर्मूला हमने देखे एक्चुअली, उसमें से पहला वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है लीनियर डेंसिटी निकालने के लिए. तो हमने ये लीनियर डेंसिटी निकाला फाइबर का
एक बार फाइबर का लिनियर डेंसिटी आ गया तो आगे तो सिंपल है, फिर n निकालना है, लिमिट सी भी निकालना है, इरिटेटिव इंडेक्स आएगा। और यान के लिए सेम प्रोसेस है, खाली यान के लिए आपको फाइबर डेंसिटी पर फिर से नहीं निकालना पड़ेगा फाइबर लिनियर डेंसिटी, बिकॉज सेम फाइबर से हम यान बना रहे, तो यहाँ तक का पोर्शन सेम ही रहेगा यान के लिए, तो निकालने की जरूरत नहीं है फिर से, तो सीधा इसको लेके हम n निकाल सकते हैं, और n निकाल के सीधा लिमिट निकाल सकते हैं, और सीधा यान इरिटेटिव हम निकाल सकते हैं, यान इरिटेटिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसीजर। सर फाइबर लीनियर डेंसिटी डायरेक्ट फार्मूले से भी आ रहा है? हाँ आता है ना, डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट निकाल के भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल वेज रह सकते हैं, हमने यूनिट नंबर 1 में ऑलरेडी देखे हैं वो वेज। मैंने जानबूझ के ये वे लिया कि थोड़ा सा इसका भी लॉजिक मालूम होना जरूरी है, वॉल्यूम का वगैरह। डायरेक्ट भी आता है, आपने डायमीटर लेके निकाला होगा। हाँ सर, r²/4। ठीक आता है, 494 ही आता है ना? यस सर। कुछ दिक्कत नहीं है, देयर माइट बी मल्टीपल वेज टू कैलकुलेट द लीनियर डेंसिटी। मैं वो सारे एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में हमने फाइबर डेंसिटी बहुत निकाले, फाइबर लीनियर डेंसिटी 4 5 6 टाइप के अलग अलग एग्जांपल लिए हमने, अगर आपको याद है तो सबको बुलाने ने उसी में से एक मेथड यूज किया है। ओके, ultimate aim is what here? You have to find out the linear density of fiber. Yes, if you able to find out linear density of fiber, your problem will get solved easily. Okay. तो इस तरीके से इसको निकालना है, कुछ दिक्कत है क्या इसमें? ये एग्जांपल 11 या 14 मार्क के लिए आता है एग्जाम में। चलो ठीक है, I will move ahead. स्क्रीनशॉट मार्क लेना चाहते तो मार्क ले लो, मैं इसको निकाल रहा हूँ अभी। Okay, now we'll see the numericals based on addition of irregularity. We'll see one numerical based on addition of irregularity. एडिशन ऑफ इरेगुलरिटी मतलब क्या है? सपोज अगर आप स्पिनिंग में मटेरियल प्रोसेस कर रहे हो या रिंग स्पिनिंग में मटेरियल प्रोसेस कर रहे हो, स्पीड फ्रेम का हम एग्जांपल लेते हैं, चलो मान के चलो स्पीड फ्रेम पे आप रोविंग क्या कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, सॉरी स्लाइवर आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो और रोविंग बना रहे हो, है ना? सिंपल सी बात है, ये आपका स्पीड फ्रेम है ना? स्पीड फ्रेम को हम स्लाइवर फीड करते हैं, दैट इज फीड मटेरियल, और स्पीड फ्रेम से क्या आता है, रोविंग आता है, दैट इज आउटपुट मटेरियल। अब इस स्लाइवर में कुछ तो वेरिएशन रहेगा, so suppose that variation will be v1, right? That coefficient of variation will be v1. अब ये जब जाएगा मशीन में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ तो वेरिएशन ऐड होगा, कुछ तो वेरिएशन ऐड होगा, ठीक है ना? सपोज वो मान के चलते हैं v2, सपोज वो मान के चलते v2। अब ये सब होने के बाद आपका मटेरियल मिल रहा है रोविंग, ये सब होने के बाद आपका मटेरियल मिल रहा है रोविंग, और इसमें कुछ तो वेरिएशन रहेगा, वो रहेगा v, वो रहेगा v। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे v इज इक्वल टू व्हाट, v1 the variation, inherent variation in the raw material plus the variation added by the machine, plus the variation added by the machine. So input plus variation added by the machine, right? v2. So this is the very simple formula what we are going to use to find out the addition of irregularity. We'll take one numerical so that you can able to understand. So here is the numerical. Write down, the sliver fed to a spinning machine has a CV of 8.5%.
The CV of the yarn is 22%. How much variation has the spinning machine added? How much variation has the spinning machine added? यहाँ पे कौन सा सिस्टम यूज किया है इन्होंने? यहाँ पे रोविंग चाहिए था। यहाँ पे चाहिए रोविंग, या तो फिर ये इसका हो सकता है रोटर का, या तो फिर ये रोटर स्पिनिंग सिस्टम हो सकता है. इफ इट इज नॉट रोटर then it should be roving. So this might be an example of rotor spinning. तो यहाँ पे क्या दिया है, गिवन डाटा क्या है? It is the given data here. The sliver fed to a spinning machine. Okay, मतलब इनपुट दिया है उन्होंने, V1 is equal to 8.5% and CV of yarn मतलब फाइनल प्रोडक्ट है. CV of yarn मतलब फाइनल है, इसका मतलब V दिया है उन्होंने, V दिया है कितना है 22%. हाउ मच वेरिएशन हैज द स्पिनिंग मशीन एडेड, मशीन ने कितना वेरिएशन डाला वो पूछा है, मतलब V2 पूछा है. सो वी कैन यूज द सिंपल फॉर्मूला V square is equal to V1 square plus V2 square. So by using this formula calculate the things and tell me the answer. How much variation spinning machine is added? जल्दी निकालो. 20.29. कितना था? 20.29. ओके बराबर है 20.29. कैसे आता है देखो अभी बाकी लोग. V स्क्वायर, V कितना दिया है 22 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 कितना दिया है 8.5 स्क्वायर प्लस V2 पता नहीं है, निकालेंगे. देयरफॉर V2 स्क्वायर इज इक्वल टू V2, ये इक्वल साइन की इस साइड में जाएगा तो क्या बनेगा 22 स्क्वायर माइनस 8.5 स्क्वायर. अब इस स्क्वायर को निकाल देते हैं हम, स्क्वायर को निकाल देते हैं. अगर मैथमेटिक्स में स्क्वायर को निकालना है दोनों साइड के तो इस तरीके से निकाल सकते हैं. इसका पहले स्क्वायर निकाल के ले लो, आपको और थोड़ा आसान जाएगा. रुको, स्क्वायर लेना पड़ता है यहाँ पे लेना पड़ता है. चलो रब है, इरेजर है. एक काम करो, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आंसर बताओ मुझे. 22 स्क्वायर माइनस 8.5 स्क्वायर का आंसर बताओ. मैं तो डायरेक्टली भी आप ले सकते हैं. 411.75. कितना था? 411.75. अब इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं. V2 इज इक्वल टू 411.75 ऐसा कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली आप ऐसा भी कर सकते हो. डायरेक्टली V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 22 स्क्वायर माइनस 8.5 स्क्वायर, ये निकालोगे तो भी आंसर आएगा. ये कितना था आंसर? स्क्वायर रूट ऑफ 411.75. V2 इज इक्वल टू, अभी आपने बताया 20.3. 20.3.
29 मतलब 3. चलो 20.29 is right answer. So the variation added by the machine, is 20.3%. So variation added by the machine is 20.3%. तो इस तरीके से इस एग्जांपल को सॉल्व करना है आपको. एक डबलिंग के ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं. जनरली फॉर व्हाट पर्पस वी यूज डबलिंग? वी यूज डबलिंग फॉर रिडक्शन ऑफ वेरिएशन. We use doubling for reduction of variation. But when we do the doubling, in that case we have to take the combined CV. अपने को यहाँ पे combined CV लेना पड़ता है. सेपरेट CV हम लेंगे नहीं क्योंकि हम डबलिंग कर रहे हैं. तो उसका फॉर्मूला है combined CV का. You can write this formula: CV of combined strand is equal to CV of individual strand divided by square root of n. n is the number of strands. n is nothing but the number of strands. अगर आपका स्लाइवर है तो नंबर ऑफ स्लाइवर स्ट्रैंड, रोविंग है तो नंबर ऑफ रोविंग. So this is n is the number of strands. So this is the formula. By using this formula we will solve one numerical. Write down this numerical. 2 rovings each with a CV of 8%. Each with a CV of 8% are fed into a spinning zone. If the spinning unit adds of 18% CV, what will be the CV of output yarn? What will be the CV of output yarn? अब यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने? 2 रोविंग फीड किया है, हर एक का CV कितना है? 8 है. अगर स्पिनिंग यूनिट मतलब स्पिनिंग मशीन 18% CV ऐड करता है, मतलब ऐड मतलब हम लिखते हैं यहाँ पे V2 18% है. V2 is 18%. What will be the CV of output yarn? मतलब V पूछा है उन्होंने, V पूछा है. V1 हमको निकालना पड़ेगा, कंबाइंड CV ये भी निकालना पड़ेगा अपने को, क्योंकि 2 रोविंग दिया यहाँ पे. तो सबसे पहले हम V1 निकालेंगे, कंबाइंड CV पहले हम निकालेंगे. V1 इज इक्वल टू, और कंबाइंड CV का फॉर्मूला क्या है? CV ऑफ individual strand of one roving. Okay, individual strand, that is single roving. Individual roving also we can write CV of single roving divided by root n. अब यहाँ पे एक रोविंग का CV है 8 डिवाइडेड बाय रूट n, मतलब रूट 2. वाई 2? बिकॉज यहाँ पे 2 ही रोविंग हमने लिया है, डबलिंग 2 का किया है. तो जब ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा? V1 इज इक्वल टू कितना था? 5.65. 5.65. 5.7. ओके ठीक है, 5.65. ओके, तो V1 आपको अभी मालूम हो गया. V निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला तो हमें पता है. V इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर. सो V1 इज व्हाट? 5.65 स्क्वायर प्लस V2 कितना है? 18 है. 18 स्क्वायर. When we do this, we'll get the answer. कितना आता है? 355.92. Okay, 355.92. So that will be the, sorry, V square. That will be V square. Therefore, V is equal to square root of 355.92. Therefore, V is equal to how much? V is 18.86. 18.86. Perfect. So we can write the CV of output yarn. The CV of the output yarn
is 18.86%. Is 18.86%. CV of आउटपुट यानी 18.86। तो इस तरीके से इस एग्जांपल को आपको सॉल्व करना है, इस तरीके से इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। Okay, now write down this example. थोड़ा सा फास्ट लिखो, खत्म करना पड़ेगा एग्जांपल को। ओके, लिखा सबने? Yes, sir. ओके, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। थोड़ा सा बड़ा है एग्जांपल, बट सिंपल है। आपने लिखा होगा एग्जांपल, तो मैं डायरेक्टली अब यहाँ पे सॉल्व करता हूँ क्योंकि जगह चाहिए मुझे थोड़ा। सो आई कैन रीड द एग्जांपल फ्रॉम बुक, so I can able to repeat it. Okay. क्या बताया उन्होंने? If on average there are 2 fibers passing down the tube to the drum in an open end spinning, so obviously rotor spinning है, ठीक है। 2 फाइबर हम पास कर रहे हैं वहाँ पे, right? And if it is known that the index of irregularity of the fiber stream is 1.5, और उसका उन्होंने बताया कि वो जो फ्लो जा रहा है फाइबर का, 2 फाइबर का, वो जो 2 फाइबर का फ्लो जा रहा है, उन्होंने बताया कि उसका इरेटिव इंडेक्स क्या है? फाइबर फ्लो। हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाइबर फ्लो कितना इरेटिव इंडेक्स उसका? 1.5। कौन सा भी एग्जांपल हो, पहले गिवन डाटा फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अगर गिवन डाटा फाइंड आउट करोगे तो आपको आसानी जाएगा लॉजिकल थिंकिंग करने के लिए, नहीं तो थिंकिंग नहीं कर पाओगे आप। दिस इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। ओके, सो 1.5 क्या है आपका फाइबर फ्लो का इरेटिव इंडेक्स है। और उन्होंने पूछा है the coefficient of variation of fiber flow density। क्या पूछा है? कैलकुलेट करो कि coefficient of variation of fiber flow density।
मतलब सीवी पूछा है, एक्चुअल सीवी ऑफ फाइबर फ्लो निकालना है, एक्चुअल सीवी ऑफ फाइबर फ्लो निकालना है। वो निकालने के लिए उन्होंने क्या क्या दिया है फिर से देखते हैं आगे। गिवन दैट देयर आर 200 डबलिंग्स, पता है डबलिंग कितना है, 200 का डबलिंग है, मतलब दो फाइबर के 200 डबलिंग होंगे, दो फाइबर फ्लो के 200 डबलिंग होंगे इन द ड्रम, एंड फाइबर लीनियर डेंसिटी इज 0.1 टेक्स, 0.1 टेक्स। अब यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि द फाइबर यूज्ड इज मैनमेड फाइबर। फ्रॉम द डाटा ऑफ टेक्स linear density, from the data of linear density of fiber, we can conclude that, or we can assume that the fiber will be the man-made fiber. The fiber will be the man-made fiber. अब आपको एक्चुअल सीवी निकालना है। सबसे पहले तो क्या, इसमें तीन पार्ट है, हम वन बाय वन जाएंगे। पहले कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फाइबर फ्लो डेंसिटी हम निकालेंगे। एक्चुअल सीवी निकालना है, हमको फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू व्हाट, एक्चुअल सीवी बाय लिमिट सीवी। एक्चुअल पूछा है, आई दिया है, क्या दिया है, आई ऑफ फाइबर फ्लो इज 1.5, लिमिट निकालना पड़ेगा। अब लिमिट से भी निकालना है तो हमने एक अजम्पशन किया है कि ये फाइबर मैनमेड है, तो फॉर्मूला अपने पास आ गया 100/√n, 100/√n। सो n निकालना पड़ेगा, अगेन वही प्रॉब्लम है ना। n पता है क्या आपको, n पता है, नंबर ऑफ फाइबर्स, n मतलब क्या रहता है, नंबर ऑफ फाइबर्स रहता है। उन्होंने ऑलरेडी बताया है फाइबर फ्लो में कितना फाइबर जा रहा है, फाइबर फ्लो कितने का हो रहा है, रोटर को जो भी ट्यूब से जा रहा है ड्रम की तरफ 1.5। अरे दो फाइबर है ना, देयर आर टू फाइबर्स पासिंग डाउन, सो 100/√2 यानी 2। कितना था लिमिट सीवी, (100/√2) कितना आता है, 17.71। 17 70 70 70 70.71 70.71। तो अपने पास लिमिट सीवी आ गया, तो हम निकाल सकते हैं ना अब एक्चुअल सीवी। सो I इज इक्वल टू एक्चुअल सीवी बाय लिमिट सीवी। सो एक्चुअल सीवी इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, I इंटू लिमिट सीवी। अब यहाँ पे I कितना है अपना, I दिया है 1.5 इंटू लिमिट सीवी आपने अभी अभी निकाला 70.71। तो एक्चुअल सीवी कितना आता है, एक्चुअल सीवी ऑफ फाइबर फ्लो कितना आता है, 106.06. 106.06%. So 106% is the actual CV. 106.06% is the actual CV. तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया इसका एग्जाम्पल का। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड लीनियर डेंसिटी इन टेक्स ऑफ द रिजल्टेंट यान। अब इससे रिजल्टेंट यान मतलब क्या है, इस फाइबर फ्लो को पकड़ के जो भी यान बन रहा है, अभी आगे जाके जो भी यान बन रहा है उसका क्या निकालो आप, लीनियर डेंसिटी निकालो टेक्स में, एंड सीवी निकालो, मतलब एक्चुअल सीवी निकालो। फिर से वही पूछा है उन्होंने, एक्चुअल सीवी ऑफ रिजल्टेंट यान, एक्चुअल सीवी ऑफ रिजल्टेंट यान कितना है, और पूछा है लीनियर डेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट यान कितना है। तो पहले हम लीनियर डेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट यान निकालेंगे, सिंपल है, लीनियर डेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट यान
ये देखो यान यहाँ पे कैसे बन रहा है, 2 फाइबर का फ्लो आ रहा है और ऐसे 200 डबलिंग है, ऐसे क्या है 200 डबलिंग है। तो हम बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शन में कितने फाइबर रहेंगे, यान के क्रॉस सेक्शन में कितने फाइबर रहेंगे, 2 इंटू 200, 2 इंटू 200, कितने क्रॉस सेक्शन में फाइबर रहे, है ना। सिंपल है, ये यान की बॉडी है, कंसेप्चुअल स्टडी है, ये यान की बॉडी है, अंदर फाइबर्स होंगे, अंदर फाइबर कितने होंगे, तो 2 का फ्लो है फाइबर का और ऐसे 200 डबलिंग किया है हमने, मतलब पूरे यान के स्ट्रक्चर में कितने रहेंगे, 2 इंटू 200, 2 इंटू 200 फाइबर्स रहेंगे। और अब इसके सिंगल फाइबर का डेंसिटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डेंसिटी दिया है उन्होंने, जो दिया है उसको लेके हम कर रहे हैं, जो दिया है उसको हम लेके कर रहे हैं यहाँ पे फाइबर लीनियर डेंसिटी, है ना। तो नंबर ऑफ फाइबर्स इन अ क्रॉस सेक्शन इंटू फाइबर डेंसिटी, ये देखा है हमने पिछले एग्जांपल्स में, है ना। तो नंबर ऑफ फाइबर्स कैसे डिसाइड किया हमने, 2 फाइबर का फ्लो आ रहा है और उन्होंने 200 डबलिंग डाला है, 200 डबलिंग डाला है। ये देखो आपको ये सिस्टम मालूम होना जरूरी है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, ये स्पिनिंग सिस्टम क्या है समझ में आना बहुत जरूरी है। तो 2 फाइबर यहाँ पे है, 200 का डबलिंग किया है, तो इन टोटल 400 फाइबर्स इसके क्रॉस सेक्शन में रहेंगे, 400 होना ही चाहिए, इसके अंदर कम ज्यादा हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज देयर विल बी 400 fibers in a cross section, and if you multiply these with the fiber density you will get the yarn linear density. So 2 into 200 into fiber density is what, 0.1 tex, 0.1 tex. When you do this you will get the answer of linear density of resultant yarn. How much is the linear density of resultant yarn? For 0 text. 40 tex. This is very simple example actually, very simple example. So 40 tex is the answer. अब क्या निकालना है, एक्चुअल सीवी, एक्चुअल सीवी ऑफ रिजल्टेड यार्न, ये तो निकाला हमने 40, ठीक है। अब एक्चुअल सीवी निकालना है, फिर से वही एक्चुअल निकालना है, मतलब क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, I इज इक्वल टू आई ऑफ यार्न इज इक्वल टू एक्चुअल सीवी ऑफ यार्न डिवाइडेड बाय लिमिट सीवी ऑफ यार्न। यहाँ पे I चेंज नहीं होगा, डबलिंग से वेरिएशन कम होता है, I नहीं चेंज होता, I उतना ही रहेगा 1.5, क्योंकि जो फाइबर फ्लो का जो इरेटी है, इरेटी इंडेक्स है, वही यान में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये 1.5 रहेगा एज पर द थ्योरी। अब यहाँ पे एक्चुअल आपको निकालना है, लिमिट पता नहीं है, लिमिट पता नहीं है, तो लिमिट को पहले निकालना पड़ेगा। तो लिमिट को कैसे निकालेंगे, लिमिट सीवी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे, 100/√n। अब यहाँ पे n कितना है, नंबर ऑफ फाइबर्स कितने हैं, यान में नंबर ऑफ फाइबर्स कितने हैं, अभी अभी हमने निकाला है ना, नंबर ऑफ फाइबर्स कितना है, 2 का फ्लो है, 200 का डबलिंग है, 400, 400। तो लिमिट सीवी कितना आता है, 5%. कितना, 5%, लिमिट सीवी आता है 5%, तो सिंपल है, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं 5%, है ना। सो देयरफॉर एक्चुअल सीवी इज इक्वल टू 1.5, ये 5 इधर जाएगा, 5 कितना आता है, 7.5. 7.5%. So this is your answer. Actual CV of yarn is 7.5%. Actual CV of yarn is 7.5%. Now we'll move to the third part. Third question. What is the third question they have given? The index of irregularity of the resultant yarn. Index of irregularity of the resultant yarn. कितना है, अभी हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट बताया था,
ये चेंज नहीं होता कभी, उतना ही रहेगा. We already stated that the doubling does not affect the irregularity index. Doubling does not affect the irregularity index. तो रिजल्टेंट यान को हमने ऑलरेडी पकड़ लिया है 1.5. तो इस क्वेश्चन का कुछ मतलब नहीं रहता, इस क्वेश्चन का कुछ मतलब नहीं रहता, बट उन्होंने पूछा है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे doubling does not affect the irregularity index, therefore irregularity index of resultant yarn is 1.5. Irregularity index of resultant yarn is 1.5. So this is the answer for third question. Already we have considered this part in question number 2, so it does not have any significant effect. Why they ask, I don't know, but if they have asked, it is our duty to answer, right? So what we can answer, doubling does not affect the irregularity index of the yarn, therefore irregularity index of resultant yarn is equal to 1.5. Like this you have to write there. In examination you just write I resultant yarn is equal to 1.5. इससे मुझे क्या समझ में आएगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ओके. सो यहाँ पे हमने ये यूनिट नंबर 3 खत्म किया है. नेक्स्ट लेक्चर से विल स्टार्ट विद द यूनिट नंबर 4. यहाँ पे मैंने स्पीड फ्रेम, रिंग फ्रेम के ड्राफ्टिंग कैलकुलेशन लिए नहीं है, ड्रॉप फ्रेम का लिया मैंने पीछे, इसलिए आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो घर में. अगर कुछ दिक्कत आता है तो मुझे पूछो.